So good evening and welcome to the Wednesday group meeting. I'm Shashi Dhar, your host. I welcome you all to this Wednesday Spirituality and Healing Meet. And the agenda for today is question-based discussion on the law of detachment. In the last session, we had discussed the basic theory of law of detachment. And today we are going to see discussions on that. What are the practical ways how you can implement this in your life? And if you, of course, if you have any clarity or any doubts, we will have discussion on that. Yes. So first, let us have a quick recap of what we covered in the last session for the benefit of those who were not here in the last session. So who would like to go ahead and share your learning from the last session? You can mention the topic and then mention your learning as well. कौन बताना चाहेंगे? And I will request all of you to switch on your video if you are comfortable. Yes. So that we can connect better. कौन share करना चाहेंगे? So I will start the recap by giving you a little brief of what we did last session. So the session started when we distinguished what is attachment. When we are talking of universal law of detachment. So first we had a good discussion on how to distinguish what is attachment and how attachment is present in your own life. You have to look into that. तो हमको स्वाध्याय करना है, अपनी लाइफ में देखना है और देखना है कि अटैचमेंट हमारी लाइफ में कहां कहां आ रहा है. तो हमने देखा अटैचमेंट किस तरह से आ सकता है लाइफ में. हमारे बाहर की दुनिया में वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है. तो इनमें से किसी भी चीज पे हम अटक सकते हैं. So we could be very attached to some situations in our life, maybe some designations in our life, maybe our possessions. हम उसके लिए बहुत अटैच हो सकते हैं. फिर हमने देखा we can be attached to people, जैसे हमने कहा पुत्र मोह, हाँ, या अपने बच्चों के लिए जो अटैचमेंट है, जहाँ अनकंडीशनल लव होना चाहिए वहां पे भी हम अटैच हो जाते हैं और उस वजह से लव को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. So we get attached instead of experiencing love. Also, there are some patterns, there are some belief systems that we have in our, that we have accepted as a truth, and that runs our life. Social conditioning, we all know that. तो बचपन से जब तक आप एडल्ट नहीं होते हैं, maybe from 2 years, 3 years to maybe 18 years, 21 years, there is a lot of information that is fed into you. तो social conditioning होती है हमको, और उसकी वजह से हम कुछ beliefs बना लेते हैं and then we get attached to it. वो हमारी लाइफ को चला रहे हैं without knowing. So these are the things that get us attached, right? So this was the discussion that we were doing in the last session. Of course, social conditioning पे ज़्यादा बात नहीं हुई, but that was something which was inherently present जब हम बोल रहे थे कि किसी और के कहने से हमारे अंदर जो changes आ जाते हैं, right? Yes. So this was the basics of attachment. Then we also saw कि हम अपने desires की fulfillment के लिए अगर results के साथ attach हो जाते हैं तो वो हमारे वो desires fulfill नहीं होते हैं, right? So this was also another aspect of what we saw in attachment. So first we distinguished attachment. So now someone else who can share. This was broadly the starting how we did. तो कौन और share करना चाहेंगे? अपनी notes check करिए, अपनी learnings check करिए और अपने experiences बता सकते हैं. हाँ जी, कौन बताना चाहेंगे? वहीं से हम अपनी continuation करेंगे इस session की. Yes. So who would like to go? Leslie, Tony, Anita ji, Amit ji. Amit ji, in fact, last time gave a wonderful explanation of what is required in a relationship. Anybody who remembers that? Amit ji ko chhod ke. Yes, Tony, go ahead. Yeah. You're on mute. You're on mute. What Amit ji had said was that in any sort of relationship, attachment should not be required, or attachment is not required, but connection is required. Yeah, but he also gave 3 other things. One, connection was the most primary thing, and we discussed that कि जब attachment नहीं है तो connection automatically आ जाता है. तो connection is important. What are the 2 other things that he mentioned? Very powerful. Responsibility And
Affection? Affection. Perfect. Yes. Swami ji, very good point made. सब लोगों को याद है, बहुत बढ़िया बात है, right? तो relationship में अगर आप successful होना चाहते हो, and life I say is nothing but relationships. Anywhere you go, you will meet people and you will have relationships. So relationships are the primary pillar of your life. Of course, health and wealth भी है, लेकिन relationships जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमको source of joy है हमारे लिए. तो relationships को अगर successful बनाना है, connection, affection, responsibility, whichever order you say that, yeah. But connection is the first. पहले connection होना जरूरी है, वरना आप attachment हो जाएगा आपको. तो attachment को distinguish करके connect करना है, soul to soul connection first. Then you will own the responsibility, whichever role you are playing. उस role के मुताबिक आप responsibility लेंगे और responsibility के है, उस responsibility के अंदर आप पूरे affection या affinity बोल लीजिए, love and affection के साथ, compassion के साथ आप उस responsibility को पूरा करेंगे. So that is how you deal with important relationships in your life. So everybody connecting with me, right? That was a very good learning. Thank you, Amit ji, once again for that. And another great thing that we discussed in the last class, which was given by Sanjeev, is what was that? Anybody who remembers? Expectation or attachment is equivalent to filling the blanks. Dash. What? Recap चल रहा है. संजीव को छोड़ के बाकी कोई भी बोल सकता है. And happiness? No. Listen to the question. What Sanjeev said was attachment is equivalent to something. And then he said, if you are getting attached, another word to attachment is Pain. dash. Pain. Huh? Pain. Pain नहीं. Think about it. What do you say? जब I आप think किसी fear था वो. fear भी नहीं था. Transaction. Very good, Leslie. Good job. Full marks. So everybody is close actually. Transaction भी fear से ही आ रहा है. सब कुछ connected. लेकिन actual word जो था वो transaction था. So you have to understand. In a relationship, when you start expecting things from people and you are attached to that expectation, what you're actually doing is you are trading. Business कर रहे हैं फिर हम बोलते हैं I love you, but then there is a lot of hidden agenda behind it. So if you have an agenda, it is like trading. You know what you are expecting from the other person, or you want from them. There's a whole to-do list. पूरी एक list होती है expectations की. Similarly for the other person, right? So attachment means what? It is equivalent to trading. आप अपनी शर्तें पूरी कर रहे हैं, वो अपनी शर्तें पूरी कर रहे हैं, यहाँ शर्तें पूरी हो रही हैं, ठीक है. जब नहीं हो रहा, टाटा सी यू बाय बाय. Relationship breaks, and then we say life doesn't work, right? So you have to understand how life works, because relationships ka basic foundation is connection, responsibility, and affection बोल लो या affinity बोल लो, same thing, right? Good. So that was a good learning. Anybody else who would like to share? क्या learnings थी पिछले हफ्ते? रेखा जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? नोट्स देखिए, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं. इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आपकी क्या थी? तो फिर हम आएंगे आज के सेशन में कि डिटैचमेंट अगर हमको प्रैक्टिस करनी है तो क्या प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, हाउ वी कैन गो इनटू प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट इन आवर लाइफ. ओके, हु एल्स वांट्स टू शेयर? वेलकम पार्थ, वेलकम नेहा जी, मिस्टर विवेक डब्ल्यू. अमित जी आपके गेस्ट हैं जी. हाँ, ये पहले आए हुए हैं शायद ना. जी विवेक वाली जी आते हैं, हमको भी आते हैं. जी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन. Very happy new year. Welcome sir. So you can be Yes, sir. participating and share anything that you want to share whenever appropriate. Yes. Yes sir. And welcome Baljinder ji, and welcome Parth. Switch on your video and join. Where are you? Okay, so who else wants to share? और क्या learnings थी? क्योंकि see, from that learnings only we will move ahead and in this session. So you need to share. पिछले session से क्या मिला? तब हम आगे बढ़ पाएंगे. I want to share about. Yeah, पहले Leslie and then Anita जी आप उसके बाद. हाँ जी. Go ahead. I want to share something which actually I have experienced recently within the last week, and this was the suffering that I'm experiencing due to my attachment for one of my family members to be
healthy and well-being. तो मतलब मेरे को बहुत क्लियरली दिखता है कि मैं इसलिए चाहता हूँ उसकी वेलबींग, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ उसकी अनवेलनेस से, एंड वो सफरिंग और या वो फ्रीडम मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो पाती. तो आई एम वेरी अटैच्ड विद दैट रिजल्ट कि वो ठीक हो जाए, बिकॉज आई मतलब दैट इज द थिंग दैट आई एक्सपीरियंस. Okay. So where are you right now? उस अवेयरनेस में आप कहाँ पहुंचे हो अभी? मेरे को चीज तो बहुत साफ दिख रही है, बट मतलब मुझे डिटैचमेंट नहीं हो पा रही है. आई एम स्टिल वेरी अटैच्ड टू द रिजल्ट. मेरे को दिख रहा है बट मतलब छोड़ा नहीं जा रहा. Okay, good. So we are aware of it. आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है कि कहाँ पे आप अटैच हो रहे हैं, and you want to know how to get freedom from there, correct? Yeah. So what I would suggest right now is I will say something, just be in that inquiry and be in the session, right? So number one is, if you are not accepting something, then you are resisting it. Yeah. And if you are resisting it, that situation will persist, because there is a universal law: resistance causes persistence. If you cannot accept the illness of your family member, if you cannot accept whatever is happening right now, that means present को तो accept करना पड़ेगा ना हमको. पहले past को accept करना पड़ेगा, present को accept करना पड़ेगा, तब present में हम कुछ ऐसे action ले सकते हैं जिससे कि future desirable हो. तो the result that you want is in the future. present में तो वो result नहीं आएगा ना. तो present में हमको accept करना है, resist नहीं करना है. The moment you are resisting it, you will be continuing that situation in the future also. So this is what I wanted to say right now. Just be in that inquiry and see what are you resisting and what are you not accepting. That will give you the clue or the way to move ahead in this area. शशि, Right? तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मैं अपनी ही फ्रीडम से बंधा हुआ हूँ. I want that freedom. I don't want that बंधन. Okay. तो मैं अपनी ही चीज से बंधा हुआ हूँ. It is, I have accepted the person's unwellness and everything, but वो जो क्योंकि उसकी वजह से जो मैं बंधा हुआ हूँ, वो मेरे को अफेक्ट कर रहा है. मैं नहीं बनना चाह रहा हूँ. That is what is happening. Yeah. So That is the suffering. रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में है कनेक्शन, मतलब कनेक्शन तो है, कनेक्शन तो दिख रहा है ना. तीनों चीजों देखो ना, कनेक्शन पूरा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं चूक हो रही है या एफिनिटी में थोड़ी चूक हो रही है. कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे आपको आपके एफर्ट्स में थोड़ी सी कमी है, देखो. राइट. एंड देन यू कैन मूव अहेड इन दैट. यस टोनी, यू वांट टू शेयर समथिंग? Yeah, related to Leslie's question and concern. Last Wednesday, what was discussed, I'm just sharing that. You had said that the fear of losing what you are attached to is called attachment, and actually ego creates fear and fear creates attachment. Correct. So I don't know, like I really don't know from which area, from which point of view Leslie is getting stuck or whatever, but I just thought I'll just share this in the session, because this was said last Wednesday, and I can totally understand, because I am constantly going in and out and up and down related to this aspect what Leslie is also saying right now. Correct. So first of all, you have to understand any pain, see whether it's an accident or an illness or anything that is happening right now is karmic. We have to know that. तो ये क्यों आया है पूछने की जरूरत नहीं है. आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये कार्मिक है. कार्मिक मीन्स इट इज बेस्ड ऑन योर कर्मास ऑफ योर पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ ऑफ द पास्ट. इस लाइफ में भी जो पास्ट है उससे आ रहा है, उसकी वजह से ये सिचुएशन आई है. तो सिचुएशन पे क्यों क्वेश्चन मार्क डालने की जरूरत नहीं है. एक्सेप्ट दैट सिचुएशन फर्स्ट. एक्सीडेंट हो गया,
कोई बीमार है। अब आगे क्या, कैसे हम उनकी सेवा कर सकते हैं, करेक्ट। तो कंट्रीब्यूशन मोड में आ जाओ, सोल टू सोल कनेक्शन रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाओ, उस सोल के साथ आप किस रिलेशनशिप में हो, कौन सा रोल प्ले कर रहे हो, फादर सन का है, सन फादर का है, हस्बैंड वाइफ का है, ब्रदर सिस्टर का है, फ्रेंड का है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आप जो भी करेक्ट एक्शन लेना चाहते हो अपने कर्मा डिफाइन करो और उसके अगेंस्ट एक्शन लो, मतलब उसकी लाइन में एक्शन लोगे आप, करेक्ट। तो कनेक्शन है, एफिनिटी है, एंड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपने कर्म को पूरा कर रहे हैं, इसमें कहीं कमी मत रखो, एंड देन रिजल्ट डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। See, it is never, you have no control on the results, right? You can only control your actions. So you have to understand, whatever is karmic, you have to bear that as a pain. But suffering और misery की जरूरत नहीं। अगर अटैच हो गए तो suffering and misery बढ़ जाएगी, उसमें मत जाना, अटैचमेंट छोड़ दीजिए। तो आप सिर्फ पेन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, there is no other option. Pain is inevitable. Suffering and misery is optional, and that comes from attachment. So what you said, Tony, ego से fear आएगा या ego से attachment आएगी, which is based on fear, which is true, absolutely true. And the way to come out of it is that first accept the pain and get rid of the suffering and the misery part. Right? That is the way to look forward. So we will be in that inquiry and we will look further into it. Sanjeev, you want to add something? Clear? Everybody clear on this? किसी को कोई doubt है? Anybody wants to get into a discussion? Agreed? Not agreed? So you are free to ask. If you have any questions. I Yes. have one question. Yes, Gaurav ji, go ahead. हाँ, like मेरे को समझ में आ गया कि अटैचमेंट से मिजरीज आएंगी, राइट? So first way to move forward is to get rid of the attachment. पर आपने बोला था इस अटैचमेंट से पहले आप हटो, उसके बाद यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी से वर्क करो, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट दैट यू विल बी लुकिंग फॉर। तो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो भी अटैचमेंट का पार्ट होगा या फिर किसी और कैटेगरी में रखेंगे? नहीं, डिजायर्ड रिजल्ट तो आएंगे, मतलब आप जब कोई कर्म कर रहे हो, जैसे कोई बीमार है तो आप उसकी सेवा क्यों कर रहे हो? ताकि वो ठीक हो जाए, है ना? Okay. तो सारे कर्म वही होंगे, हॉस्पिटल लेके जाओगे, डॉक्टर के पास लेके जाओगे, पूरी ट्रीटमेंट कराओगे, करेक्ट। उनके लिए पूजा पाठ भी कर सकते हो, जो करना चाहो आप करो, ये कर्म है आपके। अब मैं समझ गया, एक्चुअली डिजायर्ड मीन डिवाइन डिजायर्ड एक तरीके से। बाकी रिजल्ट डिवाइन पे छोड़ दो, वो आपके हाथ में है भी नहीं ना, वैसे भी कहाँ है। करेक्ट। अगर आप रिजल्ट में अटैच हो गए तो रोगे और कुछ नहीं कर सकते। राइट, गॉट इट क्लियर। सो यू डू योर बेस्ट इन दैट रोल। ओके, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस रोल में आप पूरे अपने कर्म को पूरी तरह से निभाओ एंड रिजल्ट डिवाइन पे छोड़ दो। So basically I will get the desired result but might not be the expected results. So you do whatever you want to say, you are right, and then you say divine will be done. Yes. अपनी पूरी की तरह से कोशिश करो कि मैं जीत जाऊं या मैं जो भी करूं फैमिली मेंबर की हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, एंड देन से डिवाइन विल बी डन, आगे भगवान की मर्जी। तो आप उसमें अटकेंगे नहीं, और जो भगवान की विल होगी उसके हिसाब से चलेंगे। लोग होते हैं बहुत सेवा करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, अगर आत्मा को शरीर छोड़ना होगा तो शरीर छोड़ेंगे, ठीक होके वापस आना होगा तो आएंगे, वो उनके कर्म है, उनकी जर्नी है। आप उस जर्नी में उनकी जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करिए। अगर आप पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं तो श्रवण कुमार बन के अपने माँ बाप की सेवा करिए, दैट इज इन योर कंट्रोल। लेकिन उनकी लाइफ स्पैन आपके हाथ में नहीं है ना। दैट करेक्ट। गुड गौरव जी, so good question and good insight. Yes, who would like to share further? This current discussion जो अभी चल रहा है, इसमें सब बात कर रहे हैं attachment to the present context. But we are sometimes most of the times attached to the context which has been like something has happened in the past and we are still attached to that past. Okay, yeah. So detachment from that attachment is what I would like to understand in this. Okay, good. So we will come to that, right? तो सबसे पहले जैसे हम उसी की बात कर लेते हैं, जब हम डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको समझना क्या है। डिटैचमेंट का सबसे एक पहला पॉइंट है जो पिछले बार भी हमने बात करी थी, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट? एक्सेप्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेजेंट। प्रेजेंट को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो हमने बात कर ली अभी। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस ऑफ द पास्ट।
अब आप देखेंगे बचपन से इसी पास्ट लाइफ को छोड़ देते हैं, पास्ट लाइफ में तो बहुत कुछ होता है, राइट, वो हमको मालूम नहीं है तो उसके ऊपर ज्यादा भी डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रेजेंट लाइफ को ही अगर हम देखते हैं, एक चाइल्ड की कंडीशनिंग कब से शुरू होती है? एक बच्चा पैदा होता है, उसकी कंडीशनिंग कब से शुरू होती है? जब वो 2-2.5 साल का होता है, you can have some faint memories. I have some faint memories when I was about 2.5 years old. Some memories, correct? तो कुछ ना कुछ imprints आ जाते हैं। अब मान के चलिए एक बच्चे की कंडीशनिंग कब से हो रही है? 2-2.5 साल से लेके 18 साल 21 साल तक वो बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करता है, पहले पेरेंट्स के थ्रू, फिर अपने सिबलिंग्स के थ्रू, फिर नाना नानी या जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है उसके साथ। उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, स्कूल में बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, राइट, एंड देन he grows up to become a teenager and still he is influenced by people around, society के social conditioning चलती है हमारी, right? So there are many things which have happened in the past and you start building beliefs. ये beliefs कौन से हैं आपके? ये subconscious mind में आपके beliefs बन जाते हैं। अब बहुत सारे examples हैं, examples जो भी आप अपनी लाइफ से देना चाहें देख सकते हैं, लेकिन आपके मैं एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट बोलूंगा, अधिकांश थॉट्स एंड बिलीव्स जो आपके होते हैं बाय द टाइम यू आर 18 और 21, none of these beliefs are your original. They have all been implanted. I call them viruses. आपका माइंड पूरी तरह से वायरस से भर दिया गया है। Now it is the time to challenge your beliefs, challenge your thoughts, whether this thought is empowering and it is serving you in this life or it is causing misery and suffering in your life. अगर वो आपको सफरिंग और मिजरी दे रहा है, चैलेंज इट, थ्रो इट ऑफ, वायरस से बाहर निकालो इसे। एम्पावरिंग बिलीव्स को रखो, एम्पावरिंग थॉट्स को रखो, ये चॉइस आपकी है। स्वाध्याय से आएगा ये, तो अगर आप थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे आप समझ जाएंगे। देयर आर सम इंसिडेंसेस इन योर लाइफ एवरीबॉडी हैज। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इन योर चाइल्डहुड व्हेन पीपल लाफ्ड एट यू, यू मेड अ मिस्टेक, पीपल लाफ्ड एट यू and you felt absolutely as a failure, rejected? कितने लोगों ने कहा तुम बेवकूफ हो, तुमको अक्ल नहीं है, तुमको समझ में नहीं आती बात। हाँ, कितनी बार एग्जाम्स में फेल हुए। ये सबके दोनों हाथ दोनों पाँव मेरे खड़े होंगे, हाँ, if I can. So you have to understand all these things are part of the conditioning. People will bully you, your friends will make fun of you, teachers can say something and you will take it to heart. That is true. मान लेते हैं हम दूसरों की बातों को, दूसरों ने कुछ कहा हम उसको डिसीजन मान लेते हैं, करेक्ट? Why? Because these people are in authority. एक बच्चे के लिए माँ बाप ही सब कुछ है, वो जो बोलते हैं वो उनके लिए अथॉरिटी बन जाता है। स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स ने बोल दिया वो अथॉरिटी बन जाते हैं। तो कोई भी आपकी लाइफ में अगर कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में है और वो कुछ बोल दे, इट गोज स्ट्रेट अवे एज द ट्रुथ फॉर यू. It may not be the truth. So it is time to analyze and change those belief systems. ये limiting beliefs जो हैं इनको change करना जरूरी है, ये भी आपको check करना पड़ेगा. So you have to accept only those beliefs which are empowering, which are powerful, and which are serving you in your life. Means which is forwarding you in your spiritual journey. राइट? तो क्या खुल के आ रहा है? मैंने कुछ बहुत ज्यादा मोनोलॉग कर दिया मेरे ख्याल से, तो क्या समझ में आया किसी को? सो विवेक जी आपने शुरू किया था ये टॉपिक, तो आपसे ही पूछता हूँ, कुछ आ रहा है दिमाग में कि पास्ट के बिलीव्स को कैसे चेंज करना है? क्योंकि जो भी घटनाएं घटी वो घटनाएं तो घट गई, उसके साथ साथ आपने कुछ बिलीव बना लिए हैं, वो बिलीव्स हैं जो आपकी लाइफ को रन कर रहे हैं. सो यू हैव टू चैलेंज दोस बिलीव्स. That is how you will get freedom from those past incidences of your life. तो कितने लोगों को, पहले तो ये बताइए कितने लोग कनेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने क्या बोला? सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं, वेरी गुड. बाकी लोगों के वीडियो ऑफ नहीं है, ऑफ हैं तो इसलिए मेरे को दिख नहीं रहा है. तो विवेक जी आप शेयर करना चाहेंगे क्या चल रहा है, या कुछ दिमाग में आपको कुछ इंसाइट्स आई? कोई भी शेयर कर सकते हैं. वैसे मैं विवेक जी को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने टॉपिक शुरू किया था. जी लेकिन क्योंकि वो आप पास्ट को तो कभी भूल नहीं सकते, जब तक वो रहेगा तो
उससे कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड whatever we can call that as an attachment, or we can call that thought about the past, that will keep occurring. And जब भी उस चीज को incident you cannot change, but the thoughts and beliefs about that incident can change, will change, and has to change. That is how you move forward. Yes, Amit ji, go ahead. आई थिंक यहाँ पे जो विवेक जी आप अटैचमेंट की बात कर रहे हैं ना, आई थिंक यहाँ पे शायद ये बात भी सोचनी चाहिए कि जैसे अब हम बात कर भी चुके हैं कि एवरीथिंग इज इन डिवाइन्स कंट्रोल. जो हुआ वो शायद अच्छे के लिए हुआ. हमें ये देखना होगा कि क्या हम डॉट कनेक्ट कर सकते हैं विद एनी पॉजिटिव आउटकम विच मे हैव हैपेंड आफ्टर दैट बैड इवेंट और विच मे लाइकली टू हैपन. आई थिंक वो हम प्रिंसिपल्स को, बिलीफ को क्वेश्चन करेंगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उसको शायद करने में एक मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा चाहिए, एक एक्शन बहुत बड़ा चाहिए. बट आई थिंक इंस्टेंटली साथ में अगर हम इस बारे में सोच पाएँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इस तरह की बातें वेदांता में सीख चुके हैं, और एवरीथिंग इज इन डिवाइन्स कंट्रोल, आई थिंक वो एक बहुत हेल्पफुल एक स्टेप हो सकता है टू कम आउट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द पास्ट इंसिडेंट्स दैट यू थिंकिंग ऑफ और यू टॉकिंग अबाउट. Yes, Amit ji, very good. Yes, Sanjeev. But sir, our whole genesis of society, our whole existence, we are still attached to our past. Like हमें बार बार यही सिखाया जाता है कि जो हमने पीछे से सीखा है, जो हमारे स्क्रिप्चर से, मतलब that is our past. We are not creating anything new. We are only evolving, transforming. But still we are going back to those. I mean, this is one aspect. Other aspect is in day-to-day human life. Human individual is keep going to the past, or the past instances, or past memories, or past situations, whatever has happened, and keep thinking about it, or transforming. तो उसके बारे में सोचते हैं कि अच्छा वहाँ तब ये अच्छा हुआ था, तब ऐसा भी सही, ऐसी चीज गलत हो सकती थी, या इसको और तरीके से देखा जाए, सही किया जा सकता था. तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम, जो आपने भी कहा, we are conditioned to think, to be in the past always. No, sir, I will disagree with you. As a society also. What is true is something has happened in the past. You can't change the event. I agree there. But your thoughts about the past, your beliefs about the past, okay, that has to change. That is called reprogramming of the subconscious mind. There are 100 ways how to do that. 1 second, Tony, hold on. So there is neuro-linguistic programming, NLP, which is all about reprogramming your subconscious mind. There is spiritual healing, where we heal the imprints in your chit. Yeah. So there are many ways how you can reprogram your subconscious mind, which means the thoughts, the emotions, and the beliefs of the past incidences in your life. Forget this life. You can also remove the imprints of past lives. That is all called, in the various fields we have, hypnotherapy and many other past life regression and many other ways how we do that. So you don't have to be controlled by your past. You have to be informed by your past. So you have to get the karmic learning and move on with the karmic learnings so that you can live your present powerfully. That is the way to live life. That is what will move you on the spiritual journey. And that is why we are here. अगर spiritual journey में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम past की वजह से रुके रहेंगे, तो spiritual journey में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो चित्त को खाली करना ही है. देखिए बहुत तरीके हैं. मेडिटेशन है, अपना अष्टांग योग का मेथड है, योग के सारे मेथड्स हैं, राज योग ले लीजिए, भक्ति योग ले लीजिए, ज्ञान योग ले लीजिए, कर्म योग ले लीजिए, इन सबसे आपका चित्त खाली होगा. राइट? So just be in that inquiry. And meanwhile, Sanjeev wanted to share something. So Sanjeev, over to you. So just a small thing that Vivek ji is asking. हम लोग लाइफ में कभी भी ना पास्ट को भूल नहीं सकते हैं, बिकॉज एक इवेंट इज अ इवेंट, इट्स लाइक अ मूवी जो हमारे लाइफ में हुआ है. जब शशि इज टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट डिटैचमेंट बेसिकली आप पास्ट के इवेंट से कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके एसोसिएटेड इमोशन से डिटैच होना है हमारे को. तो आपके पास्ट में कुछ अच्छा हुआ, खराब हुआ, तो उससे इधर आप एक्साइटेड हैं या आप सैड हैं. दो ही चीजें हो सकती है, पेन है या प्लेजर है. शशि, एज यू वर शेयरिंग और विवेक जी बोल रहे थे, तो माय सिंपल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपल एक्शन इज दैट डिटैचमेंट इज नथिंग बट फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम इमोशंस. इमोशन से आप फ्री हो गए, क्यों? क्योंकि वो एक इवेंट हो चुका है लाइफ में.
अब हो गया, अब उसमें आप क्या कर सकते हो? खुश होके भी कुछ नहीं कर सकते हो, परेशान होके भी नहीं कर सकते हो. That's simple, I'll say. Nothing. That's it. Perfect, Sanjay. Very simple way to analyze the whole situation. Yeah, very good. Good job. So Vivek ji, I hope you have got some clarification further, right? And meanwhile, let us hear what Tony has to say. Tony, go ahead. This is only for Vivek ji. That I would like to share something from my personal life. As a child, there was some incident took place in my childhood when I was around 3.5 years old or 3 years old, and which is that memory is very, very strong till date. But that memory gave me pain till I was 36 years old, and that was an incident that took place between me and my father, and my relationship with my father for 36 years was absolutely ridiculous, absolutely disastrous. But once I did realize, and the realization came to me in the Landmark Forum, and this is in 1997, I was able to actually come to terms, because that incident was unknowingly, unconsciously running my life. So विवेक जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि इंसिडेंट तो कभी चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि लेकिन अगर कोई इंसिडेंट आपको पेन दे रहा है तो आई थिंक इट इज बेटर टू ड्रॉप इट, बिकॉज दैट इज जस्ट एन इमोशन दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू. कोई इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट हो, चाहे अच्छा बुरा, जैसे संजीव ने बोला, जो अच्छा इंसिडेंट है उसको याद करके खुश हो सकते हो आप, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. और जो बुरा इंसिडेंट है उसको सोच के आप दुखी हो सकते हो, जो मैं 36 साल तक करता रहा. बल्कि आई वुड से माय फादर पास्ड अवे इन 2017. Even till 2017 there was some element of relationship which was still missing. Can you imagine? I was not completely out of that misery. I gave it up only after I started visiting him when he was very, very sick. So once that happened, I started dropping each and everything. And once he died, I actually gave up everything. But it was too late. And I would like to say that if you are holding on to something painful, don't hold on to it, because kuch hasil nahi hota usse. Very good, Tony. Good sharing. And sharing from your life is always very, very, personal and tough. So thanks for sharing that. And I hope it must have opened up something for everyone. Just to continue what Tony has just shared. So what I would say is that, your relationship with your parents, every child has a relationship with his parents, which is a fundamental relationship. When I say fundamental, what I mean is every relationship you have with men is a reflection of your relationship with your father. And every relationship that you have with women is a reflection of your relationship with your mother. Think about it. Very, very profound. So if you have some kind of incompletion with your father, you will have a lot of problems with your friends. You will have a lot of problems with your bosses. You will have a lot of problems with people in authority, because father is a position of authority, right? तो आप हमेशा अपने बॉसेस से या अपने जो भी आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा उसका आपका 36 का आंकड़ा रहेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सिमिलरली विद मदर, अगर आपके रिलेशनशिप आपके मदर के साथ ठीक नहीं है, यू विल हैव प्रॉब्लम विद एवरी रिलेशनशिप विद वुमेन इन योर लाइफ. उसका रिफ्लेक्शन आएगा. मैं ये नहीं कह रहा सेम होगा, उसका रिफ्लेक्शन रहेगा. तो इसको हम बोलते हैं टू बी कंप्लीट एट द लेवल ऑफ गंगोत्री. अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है, अगर आप अटैच्ड हैं किसी सफरिंग और मिजरी से, सफरिंग और मिजरी है मतलब अटैचमेंट है, किस चीज से है, कुछ बिलीफ सिस्टम आपने बना लिए हैं बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप और योर इनकम्प्लीशंस विथ योर फादर और योर मदर. तब इसको करना क्या है, पता लग गया चलो इनकम्प्लीशन है, जैसे टोनी ने कहा, व्हाट हैपेंड, हाउ डिड ही गेट फ्रीडम फ्रॉम देयर. यही बात हो रही है ना, फ्रीडम कैसे मिलना है. तो सबसे पहले आपको ये बोलना है, आई लव, आई एक्सेप्ट, आई फॉरगिव
and I thank my mother and my father for whatever they did for me. अगर वो इंसिडेंट में आपको उनको थैंक करना है तो थैंक करिए, फॉरगिव करना है तो फॉरगिव करिए। भाई वो भी इंसान है ना, गलती उनसे भी हो सकती है ना। वो हमसे 25-30 साल पहले अगर पैदा हो गए, उसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्रह्मज्ञानी बन गए हैं, गलतियां उनसे हुई होंगी। And if you are the eldest child, they didn't know possibly how to bring up a child, right? They were trying their best, but they had no idea. By fits and starts, by hit and trial method, they brought you up, correct? So you should forgive them if they have made a mistake, and most important, forgive yourself for if you have made any mistakes. Like there could be a thought that I could not serve my parents the way I should have served. अब उसमें रिग्रेट और रिसेंटमेंट लेके बैठने की जरूरत नहीं है। फॉरगिव योरसेल्फ, गलतियां आपसे भी हो सकती है ना। अपने आप को माफ करो, दूसरे इंसान को माफ करो। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, यू लव, एक्सेप्ट, फॉरगिव एंड थैंक योरसेल्फ एंड ऑल द पीपल इन योर लाइफ, यू विल बी फ्री। Leslie, you were saying how to get free, right? फ्रीडम के लिए कुछ नहीं करना है। अगर वो इंसान है तो यही 4 चीजों में आप अटके हो। Either you can't now love, accept, forgive and thank yourself and others. That is where you are stuck. The moment you are able to, and consider this individually, I love myself, I love others. I accept myself, I accept others. Others में जिसको भी बुलाना बुला लो एक एक करके। I forgive myself, I forgive others. I thank myself, I thank others. You will be free, guaranteed. And regret and resentment is a poison which you drink thinking that the other person is going to die. Think about this also. Regret or resentment अगर आपकी लाइफ में है तो it is like drinking poison. And this I'm taking a quote from some of the mentors or coaches who have coached me. Okay, not my statement, but I love this statement, so I remember it. So regret and resentment is like a poison which you drink hoping that the other person will die. कौन मरेगा अगर आप पॉइजन लोगे तो? और ये पॉइजन जान से मारने वाला नहीं होगा, ये आपके पॉइजन है आपके लाइफ में सफरिंग और मिजरी देने का। तो इसको जितनी जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा है। इसको बोलते हैं लेट गो, छोड़ देना, जस्ट लेट गो, ड्रॉप इट, या और गिव अप बोलते हैं। गिव अप मतलब छोड़ दिया, एंड गिव अप मतलब ऊपर भगवान को छोड़ दो। हाँ, गिव अप, तो गिव अप कर दो अपने हर्ट को, अपने ब्लेम को, माफ कर दो अपने आप को और औरों को, एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आप ऐसे कोई कर्म नहीं कर सकते जो जिसके लिए आप माफ नहीं कर सकते या माफी नहीं मांग सकते। ओके, थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा हो रहा है। लेट मी हैव सम पीपल शेयर। मैंने जो कुछ कहा कितने लोगों ने सुना, कनेक्ट किया? और हाँ, अनीता जी गो अहेड, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? गो अहेड। जी सर। सर, अटैचमेंट जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है उसमें अटैचमेंट या तो हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसकी वजह से हो सकती हैं, या हम किसी से हेट करते हैं, किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, वो भी हमारे अंदर विचार बार बार आते रहते हैं। तो और दूसरी चीज इसके साथ मैं एक्सेप्टेंस को भी जोड़ रही हूँ कि हम लोग सब चीजों को नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, कोई फ्रूट है, फ्रूट को हम एक्सेप्ट कर ले, ये एप्पल है, या ये रेड कलर है, या ब्लू कलर है, या नॉन लिविंग थिंग्स में ये बेड है या कुछ है। तो हम लोग नॉर्मली जो पीपल हैं, हमारे आसपास जो रिलेशंस हैं, उनको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते कि ये पर्सन ऐसा है तो मुझे इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। उसके बाद मुझे सोचना है कि मुझे करना क्या, आगे मुझे क्या स्टेप लेना है या कुछ है। यहाँ पर एक गैप आता है मेरे साथ भी, फिर भी मैं मतलब पहले से बहुत इम्प्रूव मैंने करा है, लेकिन फिर भी आता है, स्टिल अभी भी आता है कि हम पर्सन को या उस रिलेशन को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे गुलाब का फूल है और एक कमल का है, हम गुलाब को कमल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम ऐसे हैं तो सामने वाला बंदा वैसे क्यों नहीं बन पा रहा। तो ये हमारी अप्रोच ही गलत है कि जो चीज जैसी है, अगर पानी है तो वो पानी है ना, वो दूध तो नहीं बन जाएगा ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे ये एक गैप लगा,
और एक्सेप्टेंस में एक चीज मैं और ऐड करूंगी जो मेरे दिमाग में इतने दिनों से चल रही थी। हर चीज में हम लोग रिश्तेदार और रिश्तों में, रिलेशन में स्पेशली टेस्टिंग करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक पॉइजन का एग्जांपल, हमें कोई कहता है ये पॉइजन है, इसको पीने से मर जाते हैं, उसको तो हम टेस्ट नहीं करते भी, एक बार पी के देख लें मरते हैं कि नहीं मरते। उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना एज इट इज, भी ये पॉइजन है, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप में हम लोग कई बार इतना भयंकर अटकते हैं कि हम लोग परेशान होते रहते हैं। अब बहुत जैसे बढ़िया। एग्जाम्पल, अभी मैंने पिछले सेशन में, जैसे अभी संजीव सर के सेशन में मदर की बात की थी, लेकिन जब वो बीमार हुए ऑन द बेड, तो मेरे से जितना दी बेस्ट भगवान ने कराना था, आई वॉज जस्ट मीडिया करा, और मेरी मदर मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद देते थे कि बेबी मैं तेरे को समझ ही नहीं पाई सारी उम्र, माँ होकर वो मुझे नहीं समझ पाए, और उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी। मैं क्या, आप आपके और मेरे कार्मिक अकाउंट हो रहे हैं अब खत्म, आप अपनी आत्मा पे भार मत रखो, मैं अपनी आत्मा पे नहीं रखती। आप लाइट होकर अगर संसार से जा रहे हो, लाइट होके जाना है और अपना भगवान के नाम को लेके चलना है। तो ये जो एक्सेप्टेंस वाला रोल है ना, उसमें थोड़ा सा और मैं चाहूंगी, जितना मुझे समझ आया मैंने शेयर करा। बहुत बढ़िया अनीता जी, आपने तो एक्सेप्टेंस को चरम सीमा को दिखा दिया हमको। बहुत बढ़िया, शायद इसीलिए ये टॉपिक्स लेना चाहती थी आप। हाँ, अच्छा, जी गुड, वेरी जी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू। वेरी क्लोज टू योर हार्ट, बहुत अच्छी शेयरिंग थी एंड वेरी पावरफुल बाय द वे। इफ योर पेरेंट्स कैन, यू कैन बी कंप्लीट विथ योर पेरेंट्स। इसी को मैं बोलता हूँ कंप्लीशन, जो मैंने बोला था ना। तो जैसे ही अनीता जी ने अपनी मदर के साथ वो कंप्लीशन किया कि वो, उन्होंने यहाँ तक बोला कि मैं आपको समझ नहीं पाई हूँ एंड माई होल ब्लेसिंग्स आर टू यू, नाउ यू आर वन, सोल टू सोल वन कनेक्शन हो गया, दिस इज कनेक्शन। नाउ यू विल हैव नो प्रॉब्लम विथ एनीबडी इन योर लाइफ। अगर ऐसे ही अपने फादर के साथ, मदर के साथ कर लें, आपके सारे रिलेशनशिप में इतनी पावर आ जाएगी, जिसको मैं अभी बोल रहा था, जैसे ये गंगोत्री की रिलेशनशिप है, आपकी शुरुआत लाइफ की वहां से हुई थी, पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स के साथ जैसे ही आपका कंप्लीशन हो जाता है, तो गंगोत्री से गंगा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, सारे फुल फ्लो में आपकी लाइफ में लव, पीस एंड हैप्पीनेस आ जाएगी, और आपके हर रिलेशनशिप में हैप्पीनेस एंड जॉय दिखेगी। करेक्ट? सो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। वंस यू आर कंप्लीट विथ योर पेरेंट्स, योर रिलेशनशिप्स इन लाइफ विल फ्लरिश। हर जगह पे हैप्पीनेस एंड जॉय का एहसास आएगा। वेरी गुड अनीता जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर, good sharing. Yes, who else wants to share? Something is opening out for me. Yeah. And that is case like parents की बात आई, और जिस तरीके से कि मदर का रिलेशन होगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी ऑल द फीमेल्स के रिलेशन में, और फादर का मतलब माय मदर हर डाइंग इयर्स, और मे बी जितनी लाइफ में उनकी जानता हूं, मैंने उनको हमेशा सफर करते हुए देखा है। एंड शी स्टेड वेरी इल फॉर लॉट्स ऑफ इयर्स एंड वेरी अनहैप्पी वुमन शी वाज। तो मतलब कहीं ना कहीं वो, इट वाज अ वेरी अनहेल्दी सिनेरियो इन आवर फैमिली, एंड हम लोग हमेशा वो कंसर्न में रहते थे, हमेशा डिस्टर्ब रहते थे, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स के लिए भागते रहते थे उनके लिए। I think somewhere it is so deeply registered into my subconscious that मेरा जो अभी जो मैं शेयर कर रहा था किसी की सफरिंग के बारे में, it's वो फीमेल ही है, rather I would say my wife, I would say, and वो कहीं ना कहीं वही रिमाइंड करा रहा है मेरे को, and I'm resisting it majorly, and it's affecting me majorly, and I don't want, I think, that same old story to be repeated again. वही एक burden महसूस हो रहा है, वही एक बंधन महसूस हो रहा है। I understand, Leslie. So this is a very, very big, profound insight for you. So just be in that inquiry and see what exactly you need to give up to get rid of that attachment. खुल जाएगा, खुल के आएगा। थोड़ा सा और इंक्वायरी करो, you will actually get it, and it's very, very powerful, by the way, right? So could you figure it out? अभी समझ में आ गया या अभी सिर्फ इंसाइट आई है? ये जैसे कि बैंग ऑन तो नहीं है, बट यस आई कैन काइंड ऑफ कनेक्ट इट, पेरेंट्स से ही आ रहा है।
क्योंकि सबकॉन्शियस में पड़ा है, that is the reason why it is affecting me at this moment regarding my wife and all. Absolutely. तो सिर्फ ये देखना है, पेन है तो कार्मिक है, तो you don't ask why this pain happened to my mother or why this pain is happening to my wife. Correct? Number one. Right. तो आप उससे थोड़ा सा दूर हट गए पेन से, पेन को अपने आप से अलग कर लिया आपने. अब देखिए उसमें क्या करना है आपको, right? So in case of a mother, you have to only say, okay, she was, उनके कार्मिक था, जर्नी थी, and soul has moved on to a better place. So I love my wife, I love my mother, accept, forgive and thank my mother for whatever. You thank your mother and wish her, bless her for her onward journey. अभी जिस भी लाइफ फॉर्म में है वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हैं, right? That will give you freedom from there. वहां से अटैचमेंट अगर खत्म हो गया और आप फ्री हो गए, now with that profound freedom you can serve your wife and take care of your wife. That will work, right? And same equation यहाँ पे भी करनी है. First love, accept, forgive and thank yourself and your mother and then your wife. It will happen. And then जैसे हमने बात करी थी, कनेक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एफिनिटी है, गो अहेड, अपने कर्म पूरे करो और रिजल्ट डिवाइन पे छोड़ दो. Right? Very good, Leslie. Be in that inquiry and let's look at somebody else. Who else wants to share? किसके लिए कुछ खुल के आ रहा है? पार्थ, शुभिका, राजीव, बलजिंदर, नेहा जी, विवेक, गौरव, रेखा जी. आज सारे साइलेंट मोड में क्यों हैं? जो है बड़ी इंटेंस डिस्कशन हो रही है. थिंग्स शुड ओपन अप. एक एक लाइन में बताइए फटाफट फटाफट. 5 मिनट है हमारे पास. We'll wind up. And if required, we will continue the discussion in the next session. How many of you want this discussion to continue to the next session? Okay, so next week also we will have the same topic because अभी बहुत सारे points covered है. मेरा तो agenda भी शुरू ही नहीं हुआ. मैंने 3-4 points note किए थे. I'm waiting for you to tell the tools, the practical tools to which can help you to detach. Yeah, so I think we will have to move on in the next session क्योंकि वो बात नहीं हो पाई. लेकिन yes, these are the things actually that we want to say. Number one is you love, accept, forgive and thank yourself and all the people in your life. Make this as a statement every day in the morning, every day at night. Start doing it. आपकी लाइफ में जो चेहरा सामने आ रहा है उसके साथ आपको यही करना है, या माफी मांगनी है या माफ कर दो. And see, you will get freedom. Correct? So this is one of the very powerful habit that you can pick up in the form of an affirmation. Declare it. Declare to the universe. I love, accept, forgive and thank myself and all the people in my life. एक एक करके आएंगे और उनको आप इस स्टेटमेंट के साथ जोड़ के विजुलाइज करिए और देखिए कि आप उनकी तरफ स्माइल कर रहे हैं, वो आपकी तरफ स्माइल कर रहे हैं. विजुलाइज करिए थोड़ा सा. एंड माफ करना माफ करिए, जो बोलना है बोलिए, उसके बाद माफी मांगना माफी मांगिए, माफ करना माफ करिए. आई होप आई कैन से दैट. यस पार्थ, यू वांट टू से समथिंग? या तो लाइक आज तो खैर काफी कुछ मतलब मैंने नोट करा है, मतलब काफी टाइम बाद में बहुत कुछ है. तो आई अंडरस्टैंड कि जो भी लाइक पहले सिचुएशंस होती है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है. तो पहले तो ठीक है अपने अंदर से उस पॉइंट को थोड़ा एक्सेप्ट करके चलना है. तो वो वाली एक माइंडसेट मेरा जरूर आ गया है. ठीक है ना? तो ऑब्वियसली होता है, ठीक है, जब थोड़ा बुरा लगता है, पेन होता है तो ठीक है चलता है. बट दिमाग में वो चल रहा होता है कि हाँ समझ में आ जाएगा एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, है ना. एंड धीरे धीरे ऑब्वियसली ग्रेजुअली इट हैपेंस एज यू बिल्ड अप द स्किल्स. वो टाइम कम होता जाता है उसके बीच में. एंड जहाँ तक इसकी बात है जैसे फॉरगिवनेस की, तो अभी कल ही हुआ कुछ बड़ा अच्छा. दैट क्या हुआ कि मैं ठीक है, मैंने किसी गुस्सा हो गया था, नाराज हो गया था. ठीक है, द पर्सन वाज नॉट मैं नहीं जानता था, नॉट वाज अननोन, सम शॉपकीपर एंड ऑल. ठीक है, तो ठीक है मैं गाड़ी में चला गया. उसके बाद में ठीक है मैं सोच रहा था, देन मैंने सिचुएशन को सोचा, मैंने कहा ठीक तो नहीं किया यार. ठीक है, तो आई वाज लाइक कि चल ठीक है, मैंने अपने मन में माफी मांग लिया एंड ऑल दैट. मैंने कहा ठीक है, बट इट वाज सेटिस्फैक्शन सा नहीं मिला. मैं दोबारा गया वहां पे. ठीक है, जा करके वहां मैं देखा भाई भीड़ हो रखी है. मैंने कहा छोड़ भाई, रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने जाके आराम से उसको सॉरी वॉरी बोला, जो भी बात हुई थी. एंड काफी पावरफुल लगा. तो मुझे ये सीखने को मिला कि जब आप के पास में मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि आप सही में सामने वाले को बोल करके माफ कर सकते हो, देन कर देना चाहिए. तो चाहे कितनी भी पुरानी बात हो, चाहे कितनी फ्रेश हो. Yeah, that is very good. Very good, Path. Good job done. Good action taken. Very good.
And let me just getting curious, उसने क्या जवाब reaction दिया जब when you said sorry again, when you again went there and said sorry, what was his reaction? मैंने कहा इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा स्माइल करके खुश से, मेरे तो आंखों में ऑलमोस्ट आंसू से ही आ गए थे. Okay, that's great. So lot of cleansing, आंसू का आना is good, lot of cleansing, right? आपके एकदम हल्का लगा होगा उसके बाद, and आपने forgiveness मांगी और उसकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आ गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? Joy, right? So forgiveness from the heart will always bring joy to you and the other person. Remember this golden rule है ये. Yes, very good Parth. Impressed. Good action. Yes, who else wants to share? फटाफट. We have 1 minute रह गया है. फटाफट सब लोग शेयर करेंगे एक लाइन में. कौन शेयर करना चाहेंगे? Sanjeev and Amit, I will leave you the options whenever you want to share. अनिता जी ने शेयर कर दिया. रेखा जी, एक लाइन में क्या लेके जा रहे हैं सेशन से? अगर कोई कुछ बोले तो उसे माफ करके साथ, हाँ, माफ करके म्यूट कर दें. माफ करके बस साथ के साथ माफ कर दें, ताकि आप आगे उसको नहीं ले जाएंगे ना, फर्दर नहीं ले जाएंगे. मुझे ये चीज आज बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सेप्ट हो गया मेरे को कि वही की वही माफ कर देना है साथ के साथ में. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. नीता जी, आप क्या लेके जा रही हैं? जी सिमिलर थिंग, बट प्रैक्टिस करती आ रही हूँ काफी टाइम से. स्पेशली जब से सेशन शुरू हुआ है तो काफी बड़ा एक इंसिडेंट हुआ लाइफ में. 3 साल से मैं अपनी एक सिबलिंग से ही नहीं बात कर रही थी, और जी, और काफी अटैच्ड हूँ अभी भी. बट फिर अब मेरे हिसाब से उसकी गलती थी, उसके हिसाब से मेरी. So नवंबर मंथ में I went and apologized, and मैंने उनको मनाया प्यार से, सब कुछ हुआ, बातचीत हो रही है, प्यार. मुझे नहीं पता उनका क्या है फेस वैल्यू पे, वो भी खुश दिख रहे हैं. अंदर से जो भी हो उनका, अंदर से मैं बहुत खुश दिख रही हूँ. आपका चित क्लियर हो गया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वेरी गुड, गुड जॉब. डोंट वरी कि प्रिटेंड हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पे मत जाइए. आप शांत है ना, आप खाली हो गए, वो इम्पोर्टेंट है. बहुत एकदम डीप आनंद सा फील होता है सर. And send blessings of love, peace and happiness to all the souls in your life. Of course. That is in your control. वो माफी दे या ना दे, माफी मांग ली, आप फ्री हो गए. अब उनकी प्रॉब्लम है, right? Okay, good, very good, Neeta ji. To you all, sir, for this. Welcome, and it's all your journey. We are all co-creators in our destinies, right? Path ने share कर दिया, Tony ने share कर दिया. Rajiv Ranjan ji, anything you want to share? Sir, lot of insight from today's session. Yeah. Trying to take it inside, and I'm in inquiry mode, trying to understand more why I resist certain people, object, and certain things. And the punchline given by you, like love, accept, thank, and forgive, it was a new thing for me. I will definitely practice it from today itself. Good. So let it be a practice for everybody. I want all of you to write down this statement, right? And then we will take it on the next week also. तो प्रैक्टिस के लिए एक्शन प्लान सोच रहे थे सब लोग, एक ये लिखे, अपने नाम से लिखेंगे. जैसे मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा शशि loves, accepts, forgives and thanks himself and all people in his life. Thank you. Divine will be done. सिंपल है, सिंपल है, सब लिखेंगे ये. तो ये एक एक्शन प्लान लेके जाइए आज, ठीक है? अपने नाम से बोलेंगे. अनीता जी आपने लिखना होगा तो आप लिखेंगे अनीता जी नहीं, अनीता loves, accepts, forgives and thanks herself and all people in her life. Thank you. Divine will be done. ठीक है? Everybody clear on this? Yes. Leslie has shared. Shubhika ji, anything you want to share today? Shubhika, are you there? Yeah, I'm there. Yeah. Anything you want to share? क्या लेके जा रहे हैं सेशन से? Since it's my first session, so I've got many insights today. Very Though good. I knew that, but it is like when you hear it from other people's experience, so you know you understand it more better. So yeah, I understood that you have to forgive people and you have to accept their forgiveness, their mistakes as well. They are also human beings, even if it is parents or friends or family. Correct. Yeah, I'll try to practice it. Don't try, practice. Yeah. Thank you. You remember my statement, huh?
Try कुछ नहीं होता. Either you do it, don't try to do it, just do it. That's easier. Great, Shubhika ji, well done. And Thank you. yes, and who else? Neha ji, anything you want to share? Neha, are you there? Okay. Gaurav ji, are you there? हाँ जी. हाँ जी, क्या लेके जा रहे हैं सर? सर आज सबसे बड़ा तो वही चीज है कि बेसिकली अटैचमेंट की जगह अपने काम पे फोकस करना है, एंड देन द डिजायर रिजल्ट्स विल बी योर लाइक व्हाट यू बेसिकली द डिवाइन विल डिजायर फॉर यू. Perfect. बढ़िया. So anything anybody wants to share towards the end? एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ जी. लाइक जैसे अनीता जी ने बताया कि उनके रिलेशनशिप पहले अच्छे नहीं थे एंड बाद में जस्ट टर्न अराउंड इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड यू सेड कि जो आपके रिलेशनशिप आपके रहते हैं जैसे किसी वुमेन के साथ, तो वो जैसे मदर के साथ होते हैं वैसे ही रहते हैं. तो लेकिन अब जैसे पहले खराब थे बाद में ठीक हो गए, तो बाकी रिलेशनशिप में भी वही बेसिकली वो पावर आ जाएगी. जैसे कि आप मान लीजिए पहले मोबाइल एकदम 5% पे था, सडनली अगर कंप्लीट हो जाएगा वो 100% पे मोबाइल चार्ज हो गया. अब उस चार्ज पावर के साथ आप बाकी लाइफ को पावरफुली जी सकते हैं. दैट्स व्हाट आई मेंट. करेक्ट. जैसे अगर पेरेंट्स के साथ अगर आपका कोई इनकम्प्लीशन है तो आप मान लीजिए आपकी मोबाइल बैटरी 5% पे आ गई है. अब आप कितने पावर से लाइफ को चला सकते हैं? बहुत कम पावर आएगी ना. तो जब आप कंप्लीट कर लेते हैं आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई. अब उस चार्ज बैटरी से आप लाइफ में आसानी से जी सकते हैं. सो रिलेशनशिप्स में पावर आ जाएगी. दैट्स व्हाट इट मींस. ओके. करेक्ट. ओके. यस सर एक बात मैं कहना बोलिए. चाह रही हूँ. अभी लेज़ली जी ने कोई बात अपनी शेयर की, तो कुछ साल पहले जब मेरे डैडी हॉस्पिटल में थे, मतलब क्रिटिकल कंडीशन में, तो मैंने इनको कॉल करा था लेज़ली. तो ये पहुंचे वहां पर, तो इन्होंने मतलब ये हमेशा मेरे लिए सपोर्ट पर्सन बन के रहे हैं फ्रॉम 95 से लेकर अब तक. तो इन्होंने मुझे बोला कि अनीता अपने माइंड को तैयार कर, जो भी सामने रिजल्ट आएगा. तो फिर इन्होंने अपनी मदर का एग्जांपल दिया, सब दिया कि भाई जो आया वो जाएगा. तो ये उतनी देर तक मुझे तैयार करते रहे, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर ही दिए थे इन्होंने. फिर उसके बाद उन्होंने, मेरे फादर नहीं रहे, तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि थोड़ी देर मैं इमोशनली, मतलब बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो गई थी मैं. तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि अनीता गाड़ी आगे देख के चलाते हैं या पीछे देख के चलाते हैं? तो मैंने कहा आगे देख के ही चलाते हैं. तो कह रहे इस समय तेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, मम्मी की भी है, भाई की भी है, तो पापा तो चले गए, अब तूने उनके ऊपर ध्यान देना है. तो मैं यही चीज इनको कह रही हूँ कि आगे देख के गाड़ी चलाओ लेज़ली, और अगर पिछली कोई बातों से कोई लग भी रहा है, कहीं से हम हर्ट हुए हैं, तो जो मैंने सीखा है कि मैं कहती हूँ अपना नाम लेकर, अनीता कोई बात किसी ने अगर कह दी गलत या कुछ इंसिडेंट गलत हो गया, क्योंकि मेरे साथ भी कई लाइफ में एक्सीडेंट हुए हैं जब मैं बिल्कुल मरते मरते बची हूँ 2-3 बार. तो मैं फिर यही सोचती हूँ जिन लोगों ने जो करा, मैं कहती हूँ अनीता कूड़े कचरे का चिंतन नहीं करना, मन गंदा हो जाएगा. लिटरली वी हैव टू से विद आवर नेम दिस सेंटेंस कि हमें गार्बेज का चिंतन नहीं करना. उसी समय वो बात स्टॉप हो जाती है और हम आगे के लिए, हमारे लिए रास्ता बनता है. बहुत बढ़िया अनीता जी. थैंक यू so much. Okay, so with this we come to the end of the session. Unless anybody else has something absolutely burning, they want to share something. कोई है ऐसे? Good. So we will continue the discussion next week. So we end the session today here only. So good discussion. Thank you very much for all your participation and for the guests who came for the first time here. Thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great week. Let's meet again next Wednesday. Good night. Take care. God bless. Good night. Good night. Thank you. Happy Lodi everyone. Oh yes. Happy Lodi. Enjoy. Happy Great festival. Yes, कल फेस्टिवल.